Hello everyone, welcome to webinar on introduction to graphic design. Whether you are a student, professional or just someone who loves creativity, this session will help you understand the basic of design and how to use the two right tools and software. Firstly, before starting everything, I will introduce myself. My name is Ajay Kashyap and I am certified graphic design and UX trainer at Brillika Services. I have over 8 years of experience in these fields. I have guided numerous aspiring designers in mastering professional tools and techniques. By the end, you will know the key design principles, the best software to use, and how to start the first sub project with confidence. So, without wasting time, let's get started and hope we will get more participants in this session. And please mute your voice during the session. If you have any query, so please raise your hand and then unmute yourself. So let's start it. Firstly, guys, let's see what will we cover in this session. Firstly, we start from introduction to graphic design, then core principles, then topic typography basics, then goes to technology and palette, then essential. Then I will give you a demo and top seven big mistakes and fixes. So competition, UNO, and then careers, design scenes, and then it's power webinar. So, firstly, guys, you are seeing a one. There are many things are here, but without labeling or logo, you can't recognize the image or brand. If we are talking about first image, that is chocolate image, because there is no label on it. So without labeling, we can't recognize which is it dairy milk, chocolate, or not anything else. Because if you are talking about graphic design, uh, we are surrounding by graphic design. Without graphic design, you can't recognize any brand, any product without. So this is our first slide. What is graphic design? Graphic design is visual communication using typography, images, and layout to conveying a message. If you're graphic design is not a new thing or new language. It's our ancient language. If you are talking about our ancient era, तो जब किसी को कोई लैंग्वेज बोलनी भी नहीं आ रही थी, तब से हम इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. ठीक है. जब किसी को लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, तब हम लोग सिंबल्स का यूज करते थे अपनी बात को कन्वे करने के लिए या एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए. सो बस उसी चीज का एवोल्यूशन करते करते हम इतना किया है कि पहले हम वॉल्स पे लिखते थे या स्क्रिप्चर्स क्रिएट करते थे. आज के टाइम पे सिर्फ हम उसी चीज को मॉडर्नाइज करके सिर्फ सिस्टम पे लेके आए हैं या डिजिटलाइज किया है उस चीज को. Bro, Tamira, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगोस एंड ब्रांडिंग देख रहे होंगे. काफी जैसे मैकडोनल्ड है, लाइफ एंड गुड्स है, वी है, सैमसंग है, लिंक्डइन है, KFC है, शनैल है, बर्गर किंग, आई एम लविंग इट, टोयोटा, वर्जिन, फेडेक्स. बिकॉज हर एक बिजनेस का या कंपनी का एक लोगो होता है या उसका एक सिंबल होता है जिसके थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. अगर वो सिंबल किसी भी ब्रांड पे या किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगा होगा, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वो
जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड का है, चीप है कि कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि अगर एक आईफोन का लोगो है, अगर उस पे आईफोन है, एप्पल का लोगो उससे हटा दिया जाए, तो आप सेम प्रोडक्ट के कोई भी एक्सपेंस करने नहीं वाले जितना उसका रियल अमाउंट होगा। बिकॉज उस पे वो जो लोगो था उससे उसकी एक्सपेंसिवनेस थी वो बढ़ रही थी, या उससे ही आप उसको रिकग्नाइज कर रहे थे। बिकॉज विदाउट लोगो वो एक सिंपल मोबाइल हो गया है। ब्रांडिंग हम यूज करते हैं मार्केटिंग में, वेबसाइट डिजाइन में, सोशल मीडिया में एंड प्रिंट मीडिया में। बाकी लगभग सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आप जितनी भी चीजों का यूज करते हो उसका एक ब्रांड होता है। चाहे आप कोलगेट की बात करें, या शूज की बात करें, या टी शर्ट्स की बात करें, विदाउट ब्रांड यू कांट इमेजिन योर लाइफ। हेलो। Speak in English for a spring class. Let's talk about core principles of design. Firstly, we are talking about contrast. Contrast, its use for make elements stand out. Here are some example. Firstly, you have seen one image. There are 9 shapes are here. 8 are square and one is circle. And the circle is stand out between the all the shapes. बिकॉज जो उसका शेप है वो बाकी सबसे अलग है, इसलिए वो अलग से स्टैंड आउट हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट इज यूज फॉर स्टैंड आउट बिटवीन अमंग ऑल द थिंग्स। द सेकेंड वन इज अबाउट टेक्सचर। आप ऑरेंज का अगर टेक्सचर देखोगे, अगर उसका इनसाइड का टेक्सचर है वो अलग है एंड आउटसाइड का जो टेक्सचर है वो अलग है। सो जो उसका इनसाइड का टेक्सचर है वो आउटसाइड से स्टैंड आउट कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कलर्स हैं, एक कलर के ऊपर दूसरे कलर से टेक्स्ट लिखा गया है एंड दोनों कलर्स जो विजिबल है। लास्टली टेक्सचर। Guys, are you comfortable in English and Hindi both? Hello? Or if you have any query, so you can raise your hand. Hello guys, are you comfortable in English and Hindi both? Yes, sir. Okay.
वी आर ऑन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यूज होता है किसी भी डिजाइन में किसी भी एक एलिमेंट को स्टैंड आउट करने के लिए, चाहे वो शेप हो, इमेज हो या टेक्सचर हो। स्टैंड आउट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक उसके साइज के अकॉर्डिंग, किसी भी शेप को चेंज करके, या कलर को डिफरेंशिएट करके, या उसका टेक्सचर चेंज करके। नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हेल्प्स थिंग्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर आपका टेक्स्ट अलाइन नहीं होगा तो क्या होगा आपके डिजाइन में? Here is overusing of justification, and if we are correct this, so this is much better. And another way is centering long paragraph. कुछ डिजाइनर्स क्या करते हैं कि आप किसी भी मतलब बहुत लॉन्ग पैराग्राफ को सेंट्रलाइज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी इमेज है या आपका जो डिजाइन है, उसका जो इम्प्रेशन है वो घटने लगता है या रिड्यूस होने लगता है। आपको कितना भी लंबा पैराग्राफ हो, अगर आप उसे लेफ्ट अलाइन रखेंगे, सो इट इज बेटर फॉर योर डिजाइन टू क्रिएट टू क्रिएट अ कोहेसिव डिजाइन। एंड ये तो हर कोई डिजाइनर या मोस्टली डिजाइनर्स करते हैं कि अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर देते हैं। आप लोगों को कभी अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करना नहीं होता। अगर आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करोगे तो वो बहुत ज्यादा एक बिगिनर वाली फील देता है। क्योंकि ये जो अगर आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करते हो तो आपके डिजाइन में जो इम्प्रेशन पड़ने वाला होता है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट, दिस टू मेनी फॉन्ट्स इन वन डिजाइन। आपको हमेशा दो से या तीन, मैक्सिमम तीन फॉन्ट्स, उससे ज्यादा फॉन्ट्स यूज नहीं करने होते। अगर आप अपने डिजाइन में दो या तीन से ज्यादा फॉन्ट यूज कर दो तो आपका डिजाइन बहुत ज्यादा कॉमेडी फील देगा या फिर फन की फील देगा। एक जो प्रोफेशनल फील देता है डिजाइन वो नहीं दे पाएगा। तो यूज ओनली टू टू थ्री फॉन्ट्स इन योर डिजाइन ऑलवेज। दिस इज अगेन कॉन्ट्रास्ट हेयर विद अलाइनमेंट। सेटिंग टेक्स्ट पैराग्राफ टू वाइड और टू नैरो। ना तो आपका जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा वाइड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए। अगर वाइड होगा तो आपके डिजाइन का बहुत बड़ा स्पेस वो घेर लेगा, एंड अगर बहुत छोटा होगा तो उस पे किसी का जो फोकस है वो जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट is hierarchy. Guides the viewer eye and head. Always use hierarchy in your design. It's most important part of your design. Here are some examples of hierarchy. If you start from this, there is hierarchy. You will read this line first, and then here, then goes here, then here, and there. बिकॉज डिजाइनर ने उस तरीके से उस टेक्स्ट को अलाइन किया है कि आपका जो फोकस है उसी हायरार्की को फॉलो करते हुए उस लास्ट पैराग्राफ तक पहुंचे। क्योंकि टेक्स्ट को सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, बट टेक्स्ट को भी अलाइन किया गया है एक हायरार्की के अकॉर्डिंग, कि इम्पोर्ट ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस क्रिएट कर दी गई है उसके लिए कि पहले कौन सा टेक्स्ट पढ़ना है और उसके बाद कौन सा टेक्स्ट। तो इसी तरीके से पूरा इनिशियल टू फाइनल एंडिंग तक। सॉरी।
Here is another example of here. You read the first thanks to visual hierarchy. And you can see here before and after. ये जो टेक्स्ट लिखा है जेन स्मिथ, वो बिल्कुल अलाइंड है उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो पहले से लिखी गई है। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है जेन स्मिथ, वो भी टेक्स्ट ही लिखा है, बट उसको इस तरीके से अलाइन किया है जो उसकी नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आई कार्ड के लिए, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा गया है ताकि उस पर फोकस जल्दी जाए, क्योंकि अगर कोई किसी का नाम बढ़ेगा तभी उसके बाद उसकी डिटेल्स बढ़ेगा। Here is another more example. We can see here there is heading part, then subtitle, and then goes paragraph text. Here's one more example, like one boldest line, then thin, then more thin, like light theme. Here is hierarchy on behalf of colors, like from dark to light version of black color. Guys, any questions, any query about this? Hello everyone. Any question or query about the hierarchy? Okay. Next is repetition, enhance brand identity. Or there are some examples of repetition. You can see here style. The text of a style is repeated and modern, एंड यही जो लुक है वो इसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी फील दे रहा है, ब्रांडिंग लुक दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोका कोला का जो कोका कोला का जो कैन है या फिर उसकी जो बॉटल है उसको एक स्माइल के लुक में रखा गया है, और उसी बॉर्डर का रिपीटेशन करके एक फ्रॉम बिग टू स्मॉल तक रखा गया है, एंड वो एक कोहेसिव फील दे रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। अनदर वन इज हियर, मींस देयर आर डिफरेंट कलर बट सेम फेसेस एंड शेप्स। Yes. Dia ka party panis. Tane wo guy में Ali बन Another one is here, staircase. If you are seeing the repetition of black color in white, झूला है ये लड़- there is one pattern with the help of repetition. Repetition makes consistency in your design. गंदी गरी तो कंटी की बुक If we are talking about repetition is all about मीन्स आपका कोई भी कलर हो, शेप हो, साइज हो या टेक्सचर हो, अगर उसमें किसी में भी सिमिलैरिटी है, लाइक अगर आपने कोई डिफरेंट शेप्स लिया है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल लिया है एंड उस सबका कलर सेम है, देन वी कॉल्ड रिपीटिशन, बिकॉज वो कलर के बिना पर रिपीटिशन होता है। या आपने डिफरेंट कलर्स यूज बट दैट्स कॉल्ड रिपीटिशन इन बिहाफ ऑफ शेप्स। एनी क्वेरी एंड क्वेश्चंस अबाउट द रिपीटिशन गाइस?
When we are talking about white space, empty space that enhances clarity in design. So let's see how. Here are some examples of white space. The first image is bad white space and good white space. Because अगर किसी भी पैराग्राफ में कोई भी गैप नहीं होगा, अगर बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दोगे तो कोई भी रीडर है या व्यूअर है उसको क्या ऐसा नहीं पड़ेगा। बस हम लोगों को हमेशा ब्रेक चाहिए होता है किसी भी चीज। अब यहाँ पे देखोगे बहुत लंबा पैराग्राफ है, अगर हम खुद पढ़ने बैठे तो इसको तो नहीं पढ़ेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे उसी पैराग्राफ को ब्रेक करके रखा गया है एंड इट विल गिव अ मोर रेस्ट लुक फॉर आइज। सो दिस इज द राइट वे टू यूज वाइट स्पेस। अनदर वन इज हियर, वाइट स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। आपने बहुत सारे लोगोज एंड स्क्रिप्चर्स या डिजाइन्स देखे होंगे जिनमें व्हाइट स्पेस को एक नेगेटिव स्पेस के थ्रू रखा जाता है। लाइक कोई भी एक शेप लिया एंड देन उसमें से कोई एक पार्ट रिमूव करके किसी भी शेप्स के थ्रू या कोई भी इमेज के या कोई भी वेक्टर के थ्रू अगर कट कर दिया जाए तो वो एक वाइट स्पेस को एक नेगेटिव स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक इमेज है जो सिर्फ वाइट स्पेस के बिहाफ पे बनी हुई है। वाइट स्पेस है एंड यहाँ पे आप देखोगे उसका जो लुक है वो वाइट स्पेस के अकॉर्डिंग कैसा आ रहा है। यहाँ पे एक वुमेन की आईज भी दिख रही है एंड एक अलग सा एक एनिमल भी दिख रहा है। अनदर वन इज हेयर हॉर्स राइडर, जो सिर्फ वाइट स्पेस से कट करके बनाया गया है या उससे रिमूव करके बनाया गया है। अनदर वन इज की हेयर, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ दो कलर्स हैं, रेड एंड व्हाइट, बट उन्हीं दो कलर्स के बिहाफ पे एक सिटी की इमेज आप देखोगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं उनका लुक एंड फील दिख रहा होगा आपको या विजुअल दिख रहा होगा एंड एक की इमेज भी उसी के थ्रू बन रही है। अनदर वन इज हियर एक इंजीनियर और एनीवन सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज करके ही एक इमेज को या फिर एक सिलिटीज को रेडी कर दिया गया है एंड वो जो नेगेटिव स्पेस है उसी के थ्रू वो प्रॉपर पूरी की पूरी इमेज रेडी हो चुकी है। Guys, any query, any questions about the white space or negative space? Hello everyone, is there any query about white space? Okay, let's go ahead. Here we are, our typography. These are three golden rules for any text using in any type of design. So firstly, our first rule, use 1 to 3 max per design. बस अगर कोई भी डिजाइन क्रिएट करो, चाहे वो कोई भी पोस्टर है या फिर कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, अगर आप उसमें एक मैक्सिमम 3 फॉन्ट आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा फॉन्ट यूज करते हो तो उसमें जो प्रोफेशनल फील है या फिर प्रोफेशनलिज्म है वो खत्म हो जाता है एंड वो सिर्फ एक ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने बनाया है या फिर चाइल्डिश लगता है बहुत ज्यादा। सो ट्राई टू यूज 1 to 3 fonts in one design only and use I will give you one tip more, use ओनली मीन्स ऐसे फॉन्ट यूज करो आप जिसमें बहुत बड़ी फॉन्ट फैमिली हो। लाइक जैसे पॉपिंस है, पॉपिंस की बहुत बड़ी फैमिली है, पॉपिंस सेमी बोल्ड है, लाइट है, इटैलिक है, ब्लैक है एंड हेल्वेटिका है, मॉन्स्टरआर्ट है। तो आप इस टाइप के फॉन्ट्स यूज करो जिसमें आपको
कंसिस्टेंसी मिले, उसके बहुत लाइक अगर आप टाइटल लिखना चाहते हो तो सेम फॉन्ट से लिख सको, एंड उससे पैराग्राफ भी आप लिखना चाहते हो सेम फॉन्ट से लिख सको, जिससे क्या है कि आपकी जो डिजाइन है उस पर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एंड जो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी तो उससे जो आपको डिजाइन है वो बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगेगा। अनदर वन, पेयर अपोजिट फॉन्ट्स, मीन्स अगर आपने कोई डिजाइन बना रहे हो तो उसमें एक बोल्ड फॉन्ट लो एंड एक कर्सिव फॉन्ट ले सकते हो या फिर थिन फॉन्ट ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने पूरे डिजाइन में सेम ही टाइप का यूज किया है, लाइक टेक्स्ट जो आपने टाइटल लिखा है वो भी बोल्ड बोल्ड टेक्स्ट से लिखा है, जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो वो भी बोल्ड टेक्स्ट से लिख रहे हो, जो आपने सबटाइटल लिखा है वो भी बोल्ड टाइटल बोल्ड पैरा से लिख रहे हो टेक्स्ट से। सो और अगर आप इस चीज को अप्लाई भी कर दो तो आपका जो डिजाइन है, अगर आप साइड टाइटल हम टाइटल को डिफरेंशिएट करोगे उनकी बोल्डनेस एंड थिकनेस के बिहाफ पे, तो आपके डिजाइन में ऑलरेडी एक हायरार्की रेडी हो जाएगी, जिससे व्यूअर को पता रहेगा कौन सा आपका टाइटल लिखा है आपने, कौन सा सबटाइटल लिखा है, कौन सा पैराग्राफ लिखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी टेक्स्ट यूज कर रहे हो उसमें ध्यान रखो कि आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर रीडेबल नहीं होगा तो उस डिजाइन का या उस जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कोई फायदा नहीं है लिखने से। क्योंकि कुछ लोग, मैंने बहुत सारे बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी पैराग्राफ लिया बट उसको कर्सिव से लिख दिया। अब जो कर्सिव फॉन्ट है वो किसी टाइटल के लिए सबटाइटल के लिए बना है, बहुत बड़े पैराग्राफ के लिए आप अगर आप लिखोगे तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि उससे वो क्या करना पड़ेगा, अगर हम उसे पढ़ने भी बैठते हैं रीड करने के लिए तो हमारी जो आईज हैं वो बहुत जल्दी थक जाएंगी, एंड वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो पढ़ने में क्या लगेगा। सो फर्स्टली यूज ओनली प्रोफेशनल और लाइक द टेक फॉन्ट्स फॉर, अगर आप किसी टेक फील्ड के लिए काम कर रहे हो तो आप यूज करो सेंसरी फॉन्ट्स, एंड किसी अगर आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो सेरिफ फॉन्ट्स। डेकोरेटिव एंड ऑल आप यूज कर सकते हो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के लिए। सो गाइस, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क प्लीज। हेलो एवरीवन, इज देयर एनी क्वेरी अबाउट टाइपोग्राफी? You can share. Hello. हेलो, Could you can share some parable fonts? डेकोरेटिव फॉन्ट्स, The parable. पेन फॉन्ट्स, ओके ओके। In the end of seminar I will share some fonts. I will share a one PDF on your mail. Okay. Okay. Anyone? Can we go ahead? We are on color psychology and palettes. Okay, guys. If we are talking about the colors, colors are most important part of our life. Without colors, we can't imagine our life. बिकॉज हर चीज में हमें कलर्स चाहिए होते हैं। विदाउट कलर्स जो भी कोई भी चीज होगी, अगर हम कलर्स एक बार लाइफ से हटा भी दें, तो हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। अगर हमें किसी चीज में आप रोज, बिकॉज कलर्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके परसेप्शंस पे, आपके इमोशंस पे। किसी भी कलर को अगर आप बहुत ज्यादा देर देर देखते हो तो उस जो कलर से जो इमोशंस या परसेप्शंस होते हैं, उस टाइप के इमोशंस आपके जो माइंड में है वो क्रिएट होने लगते हैं। Firstly, if we are talking about how to choose colors for our new brand or new business, so
फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉनर के लिए कलर चूज करना चाहते हो। लाइक हर फील्ड में अलग कलर यूज होते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल ऑर्गेनिक फील्ड की, तो वहां पे आप देखोगे मैक्सिमम जो बिजनेस हैं वो ग्रीन से रिलेटेड होंगे। ठीक है। एंड अगर हम टेक की बात करें, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो ज्यादातर ब्लू कलर का यूज करती है, बिकॉज ब्लू कलर जो है वो ट्रस्ट को जनरेट करता है। एंड न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए ट्रस्ट की बहुत ज्यादा नीड है। अगर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो टेक्नोलॉजी यूज कैसे करेंगे। रेड कलर यूज होता है इमरजेंसी या अर्जेंसी के लिए, या डेंजर शो करने के लिए। तो आप कहीं भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस या चीज दिखानी होगी तो वहां पे रेड कलर का यूज होता है। येलो यूज होता है कॉमेडी या फन दिखाने के लिए। एंड जो स्काई ब्लू कलर है वो यूज होता है एडवेंचर दिखाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। एंड ग्रीन कलर को और एक और फील्ड में यूज कर सकते हो आप, फाइनेंस। जितने भी फाइनेंशियल ऐप है, अगर आप उनकी ग्रोथ वगैरह देखनी होगी तो अगर आप उनके चार्ट्स देखोगे, जो ग्रोथ होगी वो ग्रीन कलर से शो की जाती है, एंड जो लॉस है वो रेड कलर से शो किया जाता है। कलर सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है, ये आपकी हर फील्ड से रिलेट करते हैं। चाहे आपकी मूवीज की फील्ड हो, ठीक है, चाहे आप वेब सीरीज देखते हो। अगर आपने कभी फोकस किया हो कि जो जो कॉमेडी मूवीज होती हैं उसमें मैक्सिमम जो कलर है वो येलो का यूज किया जाता है। चाहे आप किसी मूवीज को अगर आप अब देखें ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने, अगर किसी एक मूवी की बात भी करें, अगर हम गोलमाल की बात करें, तो उसमें जो कलर है, उसके जो घर है उसका भी कलर जो येलो है, एंड जो वैन है उसका कलर भी येलो है। एंड जितनी बार भी वो मूवीज में कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनमें से किसी ना किसी ने एक ने तो येलो पहना ही होगा। हॉरर मूवीज की बात करें, हॉरर मूवीज में जो कलर यूज होता है वो ब्लैक ब्लैक ज्यादा यूज होता है। एंड डार्कनेस में पूरी मूवी चलती है। अगर सेम मूवी अगर हम किसी और कलर का यूज ज्यादा करें एंड डार्कनेस को रिमूव कर दें, तो जो मूवी हॉरिबल थी वो हॉरिबल नहीं रहेगी, क्योंकि जो उससे इमोशन जनरेट होना था वो इमोशन तो जनरेट हो ही नहीं पाया। तो ऑलवेज चूज द राइट कलर फॉर योर अपकमिंग ब्रांड और योर बिजनेस, बिकॉज कलर ही आपकी जो टारगेट ऑडियंस को टारगेट करेगा कि आपकी जो जॉनरे है वो क्या है। तो फर्स्टली डिसाइड योर जॉनरे, देन चूज द राइट कलर फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। So these are your color selection. The base color reflect. Hello, any question? Okay. पिक अ बेस कलर रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड वुड, मीन्स आपके पास एक कलर एटलीस्ट होना चाहिए जिसके थ्रू आप बाकी कलर पैलेट को जनरेट कर सके। लाइक अगर आप किसी टेक फील्ड में जा रहे हैं तो आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। किसी कॉमेडी मूवीज या कोई रेस्टोरेंट की बात करें तो ऑरेंज या येलो का यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं। एंड येलो कलर रिफ्लेक्ट करता है किसी भी फ्लेम को। सो रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो कई मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट है उनमें येलो या ऑरेंज कलर का ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज ऑरेंज जो है वो हंगर को डिपिक्ट करता है। सेकंड है आपका चूज द राइट कलर पैलेट। अगर आपने कोई एक कलर चूज कर लिया है देन उसके बाद ही आप एक कलर पैलेट को चूज कर सकते हैं जो आपकी ब्रांड वैल्यूज को शो करे। एंड दिस इज the third step, apply 60-30-10 rule for your design, for your website, for everything। अगर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो डिजाइन किसी सी चीज से भी रिलेटेड हो, अगर आप इस रूल का यूज करते हैं तो योर डिजाइन विल बी विजुअली अपीलिंग डेफिनेटली। तो प्रोसेस इज 60% आप ऑलवेज यूज करें उस कलर को जो आपकी ब्रांड वैल्यू को शो कर रहा है। देन गोज टू सेकेंडरी 30% एंड 10% एक्सेंट। अगर आप इस कलर रूल को यूज कर दें तो आपका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगेगा।
Hello everyone. If you have any question or query about the color psychology and palettes, so you can feel free to ask. Hello everyone. Is there any query or questions about the color psychology and palettes? Can we go ahead? Okay. Divya, color for fun is yellow. You can use yellow. Yellow you use for fun or comedy. Another one? So, if you have any query, so can we go ahead? But I can use blue and may- miss you can use a monochromatic theme of blue. That's best for your technical presentation. Okay. Is there any another question or query? Hello guys. Hello everyone. Are you here? Okay. So we are on professional softwares. So what are the professional software for the design field? Firstly, we are talking about Photoshop. Photoshop is used for editing, compositing, मैनिपुलेटिंग बिकॉज़ जितना भी आप इमेज एडिटिंग का वर्क है, वो सारा का सारा फ़ोटोशॉप पे ही होता है। फ़ोटोशॉप आपको फुल्ली फ्रीडम देता है, आप किसी भी इमेज के ऊपर कितने भी फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड उसको कितना भी आप कट करना चाहे, इरेज़ करना चाहे, जितनी भी मैक्सिमम टूल्स हैं, वो सारे के सारे फ़ोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं। तो जितना भी रास्टर बेस्ड वर्क होता है, वो सारा का सारा फ़ोटोशॉप में होता है। चाहे आप बात करें सोशल मीडिया पोस्ट भी आप बना सकते हैं बिकॉज़ जिसमें आप अगर रेस्टो इमेज का यूज़ कर रहे हो तो उन इमेजेस को यूज़ करके आप फ़ोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो फ़ोटोशॉप के थ्रू। आप अपनी पर्सनल इमेजेस को एडिट कर सकते हो, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर इज़ यूज्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स जैसे फ़ोटोशॉप की बट फ़ोटोशॉप में एक इश्यू है कि अगर आप फ़ोटोशॉप की कोई भी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर दो, तो एक लिमिट के बाद वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो जो फ़ाइल हो वो कितनी भी हाई एंड एक्सपोर्ट की गई हो या अगर आप नॉर्मल एग्ज़ाम्पल हम लें किसी भी कैमरे का या फ़ोटोज़ का, आप किसी भी इमेज को क्लिक करते हो, तो एक लिमिट के बाद वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाती है। वो स्टार्ट इसलिए पिक्सेलेट इसलिए होती है क्योंकि जो भी आप इमेज क्लिक करते हो, वो छोटे-छोटे पिक्सेल्स बॉक्सेस से मिलके बनता है एंड वो बॉक्सेस ही मर्ज होके एक इमेज को रेडी करते हैं।
एंड जितना इमेज का रेजोल्यूशन होगा उतना लेट वो पिक्सेलेटेड होगी. ओके, नाउ वी आर ऑन इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर इज यूज फॉर वेक्टर ग्राफिक्स. वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं जितने भी आप कार्टून्स एंड गेम्स में 2D जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हो, वो सारे के सारे एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू या एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू बनाए जाते हैं. आप खुद से किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हो या डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो. डिजिटल आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्टिक वे में जाना चाहते हो तो डिजिटल आर्टिस्ट आप बन सकते हो. कैरेक्टर एनिमेशन के लिए भी आप इलस्ट्रेटर का यूज कर सकते हो कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए. आप अगर किसी भी फील्ड की बात करें, मैक्सिमम जगह इलस्ट्रेटर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है. चाहे गेमिंग फील्ड की बात करें, चाहे आप बात करें कार्टून इंडस्ट्री की या एनिमेशन इंडस्ट्री की या फैशन इंडस्ट्री की. बिकॉज पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता था कि डायरेक्ट क्लोथ कटिंग होती थी. बट तो क्या हो रहा है कि फर्स्टली उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं क्लोथ्स के थ्रू, वो एग्जैक्टली क्या आउटपुट देने वाले हैं एंड कैसे दिखने वाले हैं. इफ विल बी गुड देन वी विल स्टार्ट स्टिचिंग एंड क्लोथ कटिंग. तो उससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस खत्म हो गया है फैशन इंडस्ट्री का. अनदर वन इज InDesign. InDesign is used in publishing house because Photoshop Illustrator मैक्सिमम पेजेस को हैंडल नहीं कर सकते. जैसे ये आप मैक्सिमम पेजेस को हैंडल करने के लिए फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यूज करोगे तो एक लिमिट के बाद वो दोनों लैग करने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपकी जो फाइल है वो क्रैश हो जाएगी. तो InDesign बनाया ही इसलिए गया है कि उसमें आप मल्टीपल पेजेस को एक साथ हैंडल कर सकते हो, चाहे वो 10 पेजेस हो, 100 हो या आपके 200 2000 तक हो. देयर इज नो लिमिट ऑफ पेज हैंडलिंग इन InDesign. InDesign का यूज होता है पब्लिशिंग हाउस में, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, मैगजीन जहाँ पे डिजाइन होती है, जहाँ पे भी मल्टीपल पेजेस पे वर्क किया जाता है. Okay, guys, is there any query about these software? So you can feel free to ask to me. Canva. Canva is not for professionals. Canva is used for मीन्स अगर आप Canva की बात करें तो Canva पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है. Canva का यूज वो कर सकते हैं जिनको प्रोफेशनल फील्ड में नहीं जाना. बिकॉज Canva क्या है, कैनवा में जितने भी टेम्पलेट्स आप देख रहे हो वो प्री डिफाइंड है. उन पे आप एडिटिंग नहीं कर सकते. अगर एडिटिंग भी कर रहे हो तो कलर चेंज करोगे या फिर वो करोगे, उससे ज्यादा आप क्या ही कर सकते हो. बट फोटोशॉप एक डिजाइनिंग प्रोफेशनल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है. इसमें आपको पूरी फ्रीडम है क्या इमेज को कैसे भी एनहांस या एडिट कर सकते हो. एंड किसी भी पोस्टर को किसी भी कितने भी ब्लेंडिंग मोड्स का यूज करके उसको बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग बना सकते हो. बट कैनवा की एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसमें काम नहीं कर सकते. दैट्स इट. Another one, any questions? Guys, any questions about the three softwares? Can we go ahead? Okay, just wait a minute. Okay, I will show you one design, social media post design.
So guys, my screen is visible to you. Photoshop interface or not? Visible. Visible. Okay, let's start. Just wait a minute. Yeah, I'm creating one artboard of 2000 by 2000 pixels because Photoshop में हम pixel based ही work करते हैं. And if you have any standard size, so you can use these type of units. There's inches, centimeters, millimeters, points, and picas. So we are using 300 resolution and 2000 width and 2000 height, and using artboard. So here we are. Needs huh? Number one. Actually, but name delicious and whereas there are some images and text. With the help of these, we can make one visually appealing social media post. So without wasting time, let's start. I'm just using guide layouts for my artboard. Firstly, I'm using 100% margin, 100 pixel margin from all sides. And another time, I'm using 50 pixel margin for all sides. So this is our workspace area. So let's go to layer panels, and I'm creating one solid color layer of just pick color from the image. And I'm using this texture image for giving more attractive look. I'm using blending mode divide. We can see also without texture or with texture, there is much more difference here, and it will give more attractive look better than. Okay, I have one platform image of wooden. I'm just placing here
and little bit resize it, make it bigger. Okay, now we're using our main image, Momo's image, and we'll resize it little bit small according to here we are. Now what you can see here, there's one white line with here also. So firstly we will remove this. So just press control on keyboard and goes to here is selection, then goes to select, modify, contract, and we have to remove 2 pixels from this image and okay. So I'm just using duplicate option, control plus J, and I'm removing last layer, and you can see here the white line is removed. It will be look bigger, so let's resize it. Okay. Now this position is best, so let's give one realism look with help of shadow. So I'm using circle and use filter, blur, and Gaussian blur to make a shadow. And little bit fine. So now just we are on our layer panels and changing the layer position of ellipse because it will be on back of Momo's image. So now you can see it will be little short and we use some opacity for making realism look, and I think so this one is fine. Yeah, let's start working on colors. Today I'm using this text and more
Okay, let's change the font. We have swiped. And so that's fine. Let's try again. Change the color because that color is not will go with this theme. So I am using white color. Changing the position with color is also giving. So let's change little bit dark. I think so. This one is much better. Good change in position. Delicious. It's the right or think so light is much better. The it's with initials with capitals. This ground is not going to with this theme, so let's change it. We are going with Poppins and make it a little bit short. Okay, this one is fine. Oh, oh, what another word is steamed. So let's we need it to in sentence case and change font to coconut. And here we have to change the color that we're using gray with this theme and make it bigger. There are some changes. I will change the position of layers and just delicious layer will be goes up on steamed. This one is fine. Okay. Currently we don't have any logo, so I'm just using the text
logo for it. Use Poppins font for make consistency. What we used it before. So little bit small. And we are changing the color of the logo text. And it will be white. I think so. It will goes much better. And here we are using some circles for balancing the design. This one, this size is fine. Mm, I'm just using duplicates for use or with the help of Alt key on keyboard and drag the mouse. Okay. So let us check the position of rings. Here we are. I think so. Little bit arrange the text on outside, and this is fine. I'm just resize my first text mouse, and mm, yes, I'm using selection and just click on here, select inverts, and again I'm using the solid color white, and guys, you can make it more attractive with help of these coriander leaves. So let's use bears. Change position of coriander. Okay, bye. So use and little bit mm,
Firstly, with changing the position of white solid layers, cardboard. Now just coriander leaves. So swing on to here. Here we are, and I'm using little bit shadow. And let's manage or adjust it. Hey, I think so. This is fine. Guys, our social media post is ready. Here we got with watch news. Ah, okay. Mm, keep on. There was some mistake or technical issue. Okay, guys. We are finally created a one social media post. I think so. This is a better demo for you. And here we are using the same colors consistency and more contrast. Look out for text and image. If we can work on our image, so can more give it more attractive look. So let's little bit more work on with this. I'm just changing the exposure and firstly clipping on image. Mhm. Clips. Okay, guys. Now this is our final output. Kinapatila po, nagbo na concept, nagtitira po sa family. Pinagdala sa. One motor, one gari taki. Hello everyone. So guys, is there any query or questions about the design or demo? Guys, any questions or query? Yeah, Dia, you can ask. I the girls must come and I got guys ask your query. Okay, if it's clear, so let's go ahead. Here are some mistakes of beginners, and you can reduce your mistakes and make your visually appealing design. So first mistake is overcrowding because beginners क्या करते हैं बहुत सारी images भी रख दी text भी रख दिया and मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह ही रख दी and पूरे डिजाइन में भर दिया तो वो क्या होगा कि एक जो प्रोफेशनल फील थी वो खत्म हो जाएगी बिकॉज आप जितना डिजाइन को सिंपल रखोगे वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है एंड एक एलिगेंस फील देता है सो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा उसमें 30% एम्प्टी स्पेस मिनिमम होना ही चाहिए तब जाके बिकॉज अगर आप टेक्स्ट और इमेजेस के बीच में या टेक्स्ट पैराग्राफ हो चाहे आपके हेडिंग्स हो या सब हेडिंग्स हो अगर उनके बीच में ही कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं होगा तो आप कैसे रीडेबल रहेंगे या फिर उन टेक्स्ट को कैसे आप अलाइन करोगे
या रेलिवेंट मान जाएगा कि वो ना तो रीडेबल हो पाएंगे, ना उनका जो फॉन्ट्स है वो ओवरलैप करेगा, ना तो इमेज पे फोकस जाएगा ना टेक्स्ट पे फोकस जाएगा. So always use 30% empty space in your designs. Secondly, low quality images. So guys, use Pixels or Unsplash for high resolution images. These are the websites for giving royalty free images, and you can use in your personal and professional use, but you can't sell these images again on any website. So please take care of it. Third is inconsistent branding. Follow a one page style guide, fonts, color, logo, shape usage. गाइस बिजनेस एंड ब्रांड में ये डिफरेंस होता है. बिजनेस क्या है, बहुत सारी चीजों को इसका, अगर हम किसी नॉर्मल ब्रांड की बात करें ना तो ब्रांड तो नहीं बोलेंगे. अगर कोई भी एक बिजनेस की बात करें तो अगर किसी भी पेज को देखें, जैसे जोमेटो का पेज, अगर आप उसका कोई भी पेज देखोगे तो वहां पे जितना भी वहां पे टेक्स्ट यूज होगा तो उन्होंने एक ही फॉन्ट को कंसिस्टेंसी के साथ यूज किया होगा. एंड अगर आप किसी भी जोमेटो वाले को अगर देखते हो तो उसकी जो टी शर्ट होगी हमेशा रेडी होगी. कभी भी आपने उसे पर्पल पहने हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उस कलर से उसकी जो ब्रांड की आइडेंटिटी है वो रिकॉग्नाइज होती है. अगर उसने कभी भी उसका कलर चेंज किया तो उसकी जो ब्रांडिंग है वो खत्म हो जाएगी, या वहीं पे उसका जो, आप उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे ये जोमेटो है या स्विगी है या ब्लिंकिट है. बिकॉज उनका अपना अपना एक कलर उन्होंने चूज किया है, या एक लोग कलर कलर पैलेट चूज किया है जिसके अकॉर्डिंग आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो. नेग्लेक्टिंग हायरार्की. यूज, ओके, हायरार्की एंड यूज साइज, वेट एंड कलर टू गाइड द व्यूअर्स है. आप तीन चीजों का यूज करके अपने डिजाइन में हायरार्की जनरेट कर सकते हो. फर्स्टली साइज, आप किसी भी चीज का साइज छोटा या बड़ा करके उसमें हायरार्की जनरेट कर सकते हो. किसी भी टेक्स्ट का वेट या साइज शेप का जो वेट है उसको, मतलब उसकी स्ट्रोक का वेट जो चेंज कर सकते हो. तो उससे क्या होगा, उसमें आपका जो टेक्स्ट है या साइज, आपको टाइटल लिखना है तो आप उसका साइज सबसे बड़ा रखो जितना भी आपने डिजाइन में रखा होगा. सबसे बड़ा साइज आपके टाइटल का होता है किसी भी डिजाइन में, देन सब टाइटल का होता है, एंड देन पैराग्राफ का होता है. अगर आप किसी प्रोडक्ट इमेज पे काम कर रहे हो या प्रोडक्ट के लिए बैनर बना रहे हो तो फर्स्टली आपका जो प्रोडक्ट की इमेज होगी उस पे बहुत सबसे ज्यादा फोकस जाना चाहिए. तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा जो बड़ा साइज होगा, एटलीस्ट 40 to 60% जो साइज है वो आपके प्रोडक्ट की इमेज का होना चाहिए पूरे डिजाइन में. पुअर फॉन्ट चॉइसेस. स्टिक टू वन हेडलाइन वन बॉडी फॉन्ट फॉर रीडेबिलिटी. ऑलवेज आई एम टेलिंग बिफोर ऑल्सो, आप हमेशा एक हेडलाइन और बॉडी फॉन्ट को ही यूज करो. बिकॉज अगर आप सेम फॉन्ट को यूज करते हो डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब अगर आपने टाइटल के लिए भी सेम फॉन्ट को यूज किया है एंड सब टाइटल के लिए भी सेम फॉन्ट को यूज किया है, एंड उसी से आप उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी लिख रहे हो, उसी से पैराग्राफ भी लिख रहे हो, तो उससे क्या है, आपका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाता है एंड रीडेबल हो जाता है. अनइवन स्पेसिंग. मेंटेन इक्वल मार्जिन एंड पैडिंग फॉर बैलेंस. ऑलवेज, बिकॉज अगर आपने कोई भी डिजाइन स्टार्ट किया है सेंटर लाइन, सो आप पूरे के पूरे डिजाइन को सेंटर लाइन ही रखो. अगर आप बीच में कहीं भी उसका जो अलाइनमेंट है चेंज करते हो तो बहुत ज्यादा एक एक चाइल्डिश लुक देता है आपके डिजाइन को, एंड आपके डिजाइन का जो इम्प्रेशन है वो वहीं पे खत्म हो जाता है. तो प्लीज यूज मार्जिन एंड पैडिंग फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन योर डिजाइन. लास्ट इज वीक कलर कॉन्ट्रास्ट. ऑलवेज रीडेबल टेक्स्ट बैकग्राउंड बैलेंस. बिकॉज अगर आप कोई भी टेक्स्ट ले रहे हो एंड कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर उसे रख रहे हो तो ऑलवेज जो आपका टेक्स्ट है वो उस बैकग्राउंड के साथ हाई कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, तभी आपको जो टेक्स्ट है रीडेबल हो पाएगा. बिकॉज अगर आपका टेक्स्ट रीडेबल नहीं होगा तो आपकी जो डिजाइन का इंप्रेशन है वो वहीं पे फिनिश हो जाता है. अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं, कभी ये वाइट है, wait a minute. That is, now this text is readable, but if we change the color, so let's see what will happen. And if we're using this color,
I don't think so. This one is better. So always use text readable background font, text readable background color because it is most important part of your design. So any question and query about the design or these type of mistakes, guys, if you have any query, you can feel free to ask. Hello everyone. Guys, any query or questions about the webinar? Questions about the this slide, like these type of mistakes? Can we go ahead? Guys, can we go ahead? Okay, guys, you can take screenshots of minimum system requirements for graphic design. Firstly, we are talking about processors. So minimum we need Intel Core i5 or 10 generation newer. Or if we going with Ryzen, so Ryzen 5 with 3000 series or newer, and minimum 1688 GB RAM, display 4K resolution with full HD, graphic cards. It's depend on your budget and for your smoothing performance of your system. So we if your budget is minimum, so you can start with GTX 1650 or better recommended if you want. And storage, so at least minimum 256 GB SSD and 512 GB HDD for your storage. Guys, can we go ahead now? If you need any screenshot and all, so you can take it for your future. Okay, let's go ahead. Then, okay, guys, now you can ask your questions. If you have any query or questions about this webinar or these, uh, like this our topic, graphic design. Any question, guys? If you have any questions, you can feel free to ask. So, guys, if you have any questions or queries, so please ask. So, can we go ahead? These are the career and scope, and top 10 job role in graphic design.
and with a global salary and domestic salary per year. These are the average salary. And guys, keep learning with us. Follow Prilika services for ongoing growth. And if because we have also a YouTube channel, so if you need any tutorials, so you can subscribe it and follow on Insta, LinkedIn, and Facebook for any type of notifications of about webinar and all. And here are QR codes of all our social media. You can scan and follow us. And guys, every master designer was once a beginner. The difference they started. So now it's your turn. Your creative journey begins today. Can't wait to see what it. I have one question. Can I ask? You can ask. Yeah. Which software is best for the printing purpose? Photoshop or Adobe Illustrator? Can you repeat your question because your voice is miss. There's some miss. Hello. Hello. Okay. Yeah. I ask which software is good for the printing purpose, like software, matlab, Photoshop or Adobe. Adobe Illustrator is the best for printing because प्रिंटिंग में अगर हम किसी भी स्केलेबल किसी भी साइज पे काम कर सकते हैं। बट अगर फोटोशॉप से अगर कोई भी आउटपुट निकालोगे तो उसकी एक लिमिट होगी एंड उसके बाद वो पिक्सेल हो जाएगा। बट इलस्ट्रेटर के साथ ऐसा नहीं है। सो प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप इलस्ट्रेटर के साथ जा सकते हो। इलस्ट्रेटर इज बेस्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पस। Okay. Thank you. ओके, वेलकम गाइस। एनी अदर्स? ओके गाइस, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम to giving here, and thanks to stay here at last. Hope you will got a great knowledge about the graphic design, and we will meet in next webinar. Hope so. Thanks for here. So good night to all guys. Thank you so much.